Pero habrá fecho ya. तो बंद करवा दे। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Sania. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Back to home, Sania. Good afternoon, beta. Yes, ma'am. Fine. Which class you had earlier? Foundation. Yes, ma'am. See, you people are so Good afternoon, ma'am. good afternoon, beta. Your people are so lucky to have these foundation class. Many students, after their 10th, they join extra classes. They join these foundation classes, and you are lucky you are getting them free of cost online. Once the schools will open, you will have these classes in regularity. Not only on the online platform you are having it, but when you will have the physical classes, that time also you will be having them. So it is such a big privilege, no, to be part of the school, isn't it? Class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Very good. Fine. I think we were doing geography yesterday, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Good morning, ma'am. Good Yes. morning, beta. Good morning, Deepshika. good afternoon, ma'am. Good afternoon, Anand. Sorry, Malay. Let everybody join. Good morning, ma'am. Good morning, Dhananjay. How is everyone doing? Deepshika, I'm very good. good? Okay. ये आयुष ने ये ऐसे इमोजी क्यों बना रखा है भाई? हैं? Ma'am, have you checked the copies? एक क्लास में चेक कॉपी की बात ना करा करें कृपया करके. You will get to know the marks. Don't worry. Fine? Okay, ma'am. हाँ. I'll let you know. Okay. I'll let you Good know. afternoon. Good afternoon, Deepshika. Okay. What about others? We were doing geography, yes? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you Yes, tell ma'am. where exactly we stopped? Good morning, ma'am. Good morning, Vivaan. Ma'am. जी बेटा.
Ma'am, we were on agglomeration economies. Okay, agglomeration economies. Were you able to understand that? Yes, ma'am. Can anybody tell me what can you give any example near your locality of your area where you are residing? Can you give any example of that? Ma'am, Phoenix Mall. उसके अलावा कोई एग्जाम्पल? हाँ, Ma'am, multinational companies. Ma'am, several complexes. हाँ, the shopping complexes that are there in the localities that where you reside, like for example, wait, Ma'am, yes बेटा, ma'am, हाँ, मैम ये इधर रामगंगा नगर की तरफ में एक नया रोड बना है, वहाँ पर न्यू कॉलोनीज आ रही है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डोरा रोड जो है आपका वहां पे आ रही है, बीडीए के द्वारा जो है वो डेवलप किया जा रहा है. एंड देर आर सेवरल in the project, within the project there are several plans which the BDA has started, initiated. और अब आप देखो उस जगह पे अगर दो लोग पहले जाते थे और जो अब जाएंगे, they will find a huge difference जिसको कहते हैं. मैम डेवलपमेंट हो रहा है बहुत वहाँ पर. बहुत ज्यादा ग्रोथ भी हो रही है. और अब आप देखो आने वाले टाइम में क्या होगा कि वहां पे वहां उस तरफ जो है बहुत सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी. स्पेशली अगर हम बात करते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज की, तो आप देखना वहां पे धीरे धीरे बहुत सारी, जैसे मेडिसिटी का सेकंड पार्ट वहां पे आ रहा है, फिर आपका केशलता हॉस्पिटल जो है उसका वो आ रहा है, फिर एक आयुर्वेदिक कॉलेज बन रहा है, LIC जो है उसकी कोई बिल्डिंग बन रही है वहां पे, ठीक है. फिर एक वो है IMA का जो सेंटर है वो बन रहा है. ये सारे जितने भी हैं ये सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में है, मिडवे है, कोई अबाउट टू फिनिश है, कोई इनिशियल स्टेज पे है. तो अगर आप उस रोड पे जाते हो तो यू विल कम टू नो कि बहुत कुछ ऐसा है जो हम देख सकते हैं वहां पे. ठीक है, यस मैम. चलिए. So we were doing Manufacturing industries. कहीं पे हेडिंग दिख रही है? जस्ट अ सेकेंड. आई थिंक ये वाला है. ठीक है, हाँ, Yes, हम यही वाला हम कर रहे थे ना. अब आप देखो Yes, ये ma'am. जो फिनिक्स मॉल जो आया है, इसके आने से क्या क्या चेंजेस आए. इधर एक हॉस्पिटल आ गया, ठीक है. इनफैक्ट दो, एक एपेक्स और एक आपका पटेल हॉस्पिटल ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्टेंस में था. ठीक है, बहुत सारी नर्सरीज जो हैं वो आ गई, पार्किंग्स बन गई. ठीक है, फिर ईटिंग जॉइंट्स आ गए, राइट. आप देखो एक कॉम्प्लेक्स ma'am. डेवलप हो गया, एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो है बन गया है जहाँ पे जावेद हबीब का सलून है. फिर आपका वहीं पे जो है नीचे कुछ रेस्टोरेंट टाइप है जहाँ पे कुछ खाने वाने के लिए छोटी मोटी चीजें हैं. ठीक है, तो ये दीज आर कॉल्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. अगर कोई भी चीज नई डेवलप होती है उसके साथ में, जैसे सपोज यहाँ पे कुछ सेटअप हुआ, उसके साथ में बहुत सारी चीजें जो हैं साइमल्टेनियसली आपको मिल जाती हैं, राइट. Yes, ma'am. आप देखो Yes, ma'am. जब इनिशियली जब सेटलमेंट स्टार्ट हुई तो वो आपकी कहाँ पे शुरू हुई थी? सेटलमेंट्स कहाँ पे शुरू हुई थी सबसे पहले? बेटा एक मिनट, दो बच्चे आए हैं मीटिंग में, कौन है? लेट मी सी. ठीक है, जब सेटलमेंट्स हुई, लैंड सेटल जब
अर्ली ह्यूमंस ने जब सेटल्ड लाइफ जीना शुरू करा, रिवर वैलीज के पास था वो, मैम पानी के पास। ठीक है, रिवर वैलीज के पास था। वहां पे सेटलमेंट्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, होते होते सिटीज आ गई, ठीक है। अब जब सिटीज आ गई तो इन सिटीज में भी क्या होने लगा, अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आ गई, ठीक है। इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे। जब हम इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, उनके इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज के सेटअप के साथ और बहुत सारी छोटी छोटी इकोनॉमीज भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। राइट क्लास? यस ठीक है। यस Yes. This was, I think this was all about the locational, we were discussing about the locational factors, right? बेटा लोकेशनल फैक्टर्स ही तो के बारे में ही तो हम बात कर रहे थे बच्चे, यस मैम यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। चलिए, ये एकदम लोकेशनल फैक्टर्स एकदम क्लियर हो गए आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, अब हम सेकेंड पार्ट इसके आते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट जो है, इट टेल्स अस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या आता है? कैन एनीबडी टेल? वी हैव डन दिस इन क्लास 8 आल्सो, इफ यू रिमेंबर। मैम डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज। यस कुणाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यस मैम। ठीक है। मैम See, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज का बेटा, दे आर क्लासिफाइड ऑन 5 बेसिस, राइट। सबसे पहला बेस क्या होता है क्लासिफिकेशन का? सबसे पहला बेस होता है agro based industries. ओके प्रियांशु, व्हाट आर एग्रो raw बेस्ड material. इंडस्ट्रीज? व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? Ma'am, like ma'am, they produce cotton wool. Ma'am, like ma'am, clothes like cotton, woolen, jute, silk, textile companies. Ma'am, like मैम रिलेटेड टू बट इसका जो मेन होता है, यस काव्या, materials, काव्या बताओ। agriculture and हाँ, एग्रीकल्चरल गुड्स के थ्रू, यू आर राइट। अब जैसे अगर हम कहें, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर हम ये कहें कि इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड, फर्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ raw material. as Kunal said, right? अब we all know that raw material is produced by the agricultural sector, जो कि प्राइमरी सेक्टर भी है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. तो वो सारी इंडस्ट्रीज, all those industries which get their raw material for processing from the agricultural sector, they are all called as the agro based industries, ठीक है। इंडस्ट्री, they are called agro based industries, ठीक है। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं रॉ मटेरियल के बेसिस पे, एक आपका होता है एग्रो बेस्ड और एक होता है And ma'am, mineral based. Mineral based. एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड, राइट। एग्रो बेस्ड में वी ऑल नो, देखो माइनिंग जो होती है, माइनिंग इज ऑल्सो अ प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। पहले मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डाला जाता है, राइट। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो भी रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, दैट इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर, दे are called the agro based industries, and whatever minerals are extracted through mining, through shaft mining, open cast mining या drilling या जो भी है, वो जो है mineral based industries हो जाती हैं। स्पेशली आपकी आयरन एंड स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री और आपकी जो टूल, मशीन टूल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। राइट क्लास? Yes, ma'am. yes ma'am. Yes. चलिए, अगर हम इसका सेकंड बेस की बात करें, तो सेकंड बेस्ड जो है वो आपका लेबर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, ठीक है। कैपिटल बेस्ड
कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड। अब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा वो इंडस्ट्रीज जिसमें कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्री, फॉर द सेटअप ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, फॉर द सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो जैसे अगर हम इनको कैटेगराइज करते हैं तो हम इनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। पहला आपका होता है स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल हो गया। उसके बाद कौन सा आ गया आपका, लार्ज स्केल। लार्ज स्केल। यस, स्मॉल स्केल हो गया, लार्ज स्केल हो गया। ठीक है, हम इसमें कई बार जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी डालते हैं, पर कॉटेज एक्सक्यूज इंडस्ट्री, मैम, यस बेटा, मैम यदविंदर को मैम मीटिंग में ले लीजिए। बेटा 1 मिनट, अभी ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं 1 मिनट। हाँ, चलिए ठीक है, स्मॉल स्केल हो गया और आपका लार्ज स्केल हो गया। ठीक है बेटा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं इनमें जो है बहुत ज्यादा लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है। अगर आपको याद हो क्लास 8 में हमने आपको बताया था कि लेस देन 1 करोड़ अगर का इन्वेस्टमेंट है देन इट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हाँ वो स्मॉल स्केल होती है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 करोड़ के बीच में जो है इन्वेस्टमेंट आ जाता है। पहले ये अमाउंट कंपैरेटिवली कम था, अब एज द टाइम्स आर चेंजिंग ये अमाउंट जो है बढ़ गया है। ठीक है, राइट, इतना क्लियर हो गया, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल क्लियर हुआ। यस मैम। फिर आपको याद होगा हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था एक थर्ड टाइप की इंडस्ट्री थी, क्लासिफिकेशन था जो कि वाज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हु ओन्स इट, उसके बेसिस पे भी था। अब जब हम ओनरशिप की बात करते हैं तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं इनटू 4 पार्ट्स, राइट, करते हैं ना, हम करते हैं पब्लिक ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है, कोऑपरेटिव एंड जॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये पब्लिक का मतलब क्या हुआ, वो इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करी जाती हैं, राइट, वेयर द गवर्नमेंट इज इन द अथॉरिटी ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, वो आपकी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हो गई। जैसे अगर हम गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो आपकी भेल और सेल आपने पढ़ा होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, हाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है ये आपका पब्लिक सेक्टर का पार्ट है, इनको हम पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर। यस मैम। ठीक है, गेल, सेल गेल ये आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, सेल इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, भेल इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप की जब हम बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ओनरशिप वो होती है जिसमें कि एन इंडिविजुअल ओन्स, ठीक है, एन इंडस्ट्री और अ कंपनी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। क्या आप इंडिविजुअल ओनरशिप या प्राइवेट ओनरशिप का कोई एग्जांपल दे सकते हो बेटा? मैम रिलायंस। हाँ, रिलायंस हो गया, टिस्को हो गया, बजाज हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ वेरी गुड। जब हम कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव एज द नेम सजेस्ट्स यू कि समथिंग दैट इज ओन्ड or operated by the producers or the suppliers of the raw materials, workers or both, right? This is something जिसमें कि दोनों तरफ से collaboration होता है, आपका जो raw material provide कराता है वो भी, प्लस वो जो उसमें काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में तो आपका जो शुगर मिल्स होती है ना, शुगर इंडस्ट्री, राइट, शुगर इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपका जो अमूल है, अमूल
लिज्जत पापड़, आपने लिज्जत पापड़ के बारे में पढ़ा होगा, है ना? No, ma'am. Yes, ma'am. बेटा लिज्जत पापड़ की तो ऐड भी आती है धनंजय, कितनी सारी आती है लिज्जत पापड़ की। पापड़ जानते हैं? पापड़, okay, Ma'am, you the must not company have- was started by some rural women. हाँ, even today also they are the only owners of that. पर इसमें क्या होता है, कोलैबोरेशन ma'am. में वो काम करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये अमूल हुआ, लिज्जत पापड़ हुआ, फिर आपका ये हमने क्या बताया, शुगर इंडस्ट्री, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर का काम है। शुगर इंडस्ट्री में जो मिल्स वगैरह होती हैं, अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे ये फरीदपुर से कौन बच्चे आते हैं, कौन सी मिल के बच्चे आते हैं? द्वारकेश शुगर मिल है ना? Yes, ma'am. आई थिंक आप में से भी कोई वहीं पे रहता है द्वारकेश शुगर मिल की तरफ? यस क्लास बेटा? मैम मेरी बुआ रहती है। हाँ ठीक है, तो देखो ये जो शुगर मिल्स होती है ना, ये एक्चुअली ये शहर से दूर इसलिए होती है क्योंकि ये उन जगहों पे बनाई जाती हैं जहाँ पे इजीली रॉ मटेरियल आ सके। तो ये जनरली उन एग्रीकल्चरल एरियाज के पास बनाई जाती है जहाँ पे शुगर केन ग्रो करा जाता है, ताकि जब शुगर केन का सीजन खत्म हो जाए तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ना आए और इजीली ये इन मिल्स को जो है ये शुगर केन अवेलेबल हो जाए आफ्टर राइपनिंग। ठीक है, राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोऑपरेटिव सेक्टर क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आ जाओ आप जॉइंट सेक्टर पे। जॉइंट सेक्टर का मतलब क्या है? मैम? यस बेटा? मैम अमूल गवर्नमेंट की नहीं है क्या? नहीं बेटा, अमूल कोऑपरेटिव डेयरी है ये। अमूल डेयरी जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की है बेटा। Excuse me, ma'am. जी बेटा। Ma'am, most of the companies have, ma'am, written name there, ma'am, private limited. हाँ Ma'am, what does it mean? बेटा, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या होता है? अच्छा आप मुझे बताओ, कोई भी क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं। Ma'am, it is private or limited. हाँ Ma'am, may I? यस यस मलय बताओ बेटा। Ma'am, Working the company individual. which is owned by an individual person. हाँ वो होती है आपकी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, राइट? Okay, Yes, ma'am. Yes. देखो ठीक है, कोई और डाउट? अब बेटा आयुष No, क्लियर हो ma'am. गया? क्लियर हो गया आयुष? Yes, ma'am. ठीक है, जब हम जॉइंट सेक्टर की बात करते हैं, जॉइंट सेक्टर बेसिकली वो होता है जिसमें आपका A प्लस B जो है मिलके काम करती है जॉइंटली। मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जहां पे पूरी तरीके से पब्लिक के गवर्नमेंट के हाथ में भी जो है सारा जो है कंट्रोल नहीं होता है, ना ही कंप्लीटली जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में कंट्रोल होता है। दैट इज कॉल्ड दी जॉइंट सेक्टर। ठीक है, जैसे अगर हम जॉइंट सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो ऑयल इंडिया लिमिटेड हुआ, या आपका ये क्या बोलते हैं, ये जो एरोनॉटिकल्स वगैरह के जो ये जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाते हैं प्लेन्स क्राफ्ट्स वगैरह के, हाँ ये जो है ये जॉइंटली जो है काम करते हैं। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है और पब्लिक सेक्टर जो है अपने उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो उनको एरियाज प्रोवाइड कराती है कि आप फला फला, जैसे हम क्या एग्जांपल बताएं इसके लिए आपको, अगर आप Ma'am, Hindustan Aeronautics Limited. हाँ HAL ना, हेल ना? Yes, ma'am. Ma'am, it is in Lucknow also. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ठीक है, तो Ma'am, ये जो we हाँ, belongs to there. you belong to that place? Yes, ma'am. Oh, that's so good. So you must be knowing much about it. No, tell Yes, something ma'am. about it. Ma'am, I Yes, saw ma'am. everything, how the parts are made and how it is assembled there and how it is shipped from there. Okay, that's so good. Very good, very good.
चलिए, ये ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Now ठीक है, ma'am. coming to the next basis, that is source of raw material. On the basis of the source of raw material, ये हुआ कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई करते हैं। आपका सॉरी, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से हम क्लासिफाई करते हैं उनको एज प्राइमरी मिनरल बेस्ड एंड एग्रो बेस्ड, और उसी में जो आपका जो वॉल्यूम होता है ना, वेट के अकॉर्डिंग, कि रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड का जो भी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको हैवी या लाइट इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं, हैवी स्लैश लाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है, राइट। अब हैवी इंडस्ट्रीज Yes, में, ma'am. हैवी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसमें आ जाती है आपकी आयरन एंड स्टील, आयरन, ठीक है, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है ये आपकी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं। और लाइट इंडस्ट्री में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाली होती हैं ये आपका लाइट इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, ठीक है, यस फाइन, क्लियर टू एवरीवन? Ma'am, cotton Yes, ma'am. industries will be classified into. एग्रो बेस्ड कॉटन विल बी क्लासिफाइड इनटू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, चलिए नेक्स्ट इज what is the role of the industry on the basis of the role played। जैसे कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं और कुछ आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. Can you tell me what is this basic and what is this consumer based? Beta, anybody in the class? Ma'am, basic industries are those Ma'am, who what, ma'am? Please sell repeat the question. raw materials. बेटा माय क्वेश्चन इज कि ये बेसिक और जो आपकी जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है ये क्या होती है, बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जहां पे काव्या ने बताया अभी इसका आंसर आई बिलीव। Yes, ma'am. दोबारा बताओ काव्या, आयुष सुन नहीं पाए। Ma'am, ma'am, in this industries, raw materials are sell to मतलब to make other goods. हाँ, और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? And those industries who consumes. Those industries Ma'am, who use Ma'am, those raw materials. Ma'am, which industry who use those raw materials in our to make stuff. हाँ देखो, कंज्यूम जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, मैम हाँ बताओ बताओ बेटा। मैम इन कंज्यूमर इंडस्ट्री मैम जो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है सीधे कंज्यूमर को मैम सेल कर दिया। नहीं नहीं, देखो बेसिक इंडस्ट्री जो होती है ना उसमें क्या होता है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज में जो काम आते हैं उनको हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी बनाती है, ठीक है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनाती है, तभी तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम हो पाता है। तो ये बेसिक इंडस्ट्री हो गई जो कि बाकी इंडस्ट्रीज के लिए काम करके उनको जो है मटेरियल प्रोवाइड कराती है सो दैट दे कैन प्रोड्यूस फॉर फर्दर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और आपका जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने के लिए गुड्स बनाती है। जैसे कि आपकी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री हो गई, उसमें मेडिसिन बनती हैं और डायरेक्टली वो कंज्यूमर्स के पास आ जाती हैं फॉर दी कंजम्पशन पार्ट, राइट? यस Yes. ठीक है, ये कंज्यूमर इंडस्ट्री एंड बेसिक इंडस्ट्री क्लियर हो गया आप लोगों को? No. यस Yes, मैम ma'am. धनंजय No, ma'am. बेटा इन बेसिक इंडस्ट्रीज को हम की इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं?
Key industry. ठीक है। और ये जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये हमारी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स के कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाती हैं। एम आई क्लियर? बेटा क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. चलिए, ओके। ये बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्री क्लियर हो गया ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। अब इतना यहाँ तक पढ़ लें, पहले हम लोग रीडिंग कर लें यहाँ तक बुक से, Yes. Yes, ma'am. है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो कैन वी हैव ठीक है, लेट अस गो टू गूगल बाबा टू आस्क। Beta Anya Gupta, can you read? I'll just share the screen. Ma'am, actually she got disconnected. She just messaged me. She is having some network issues. Network is a big problem nowadays. Huh? Just a second. Can you see the screen, class? Yes, ma'am. We are doing manufacturing industries, right? Yes. ठीक है, चलिए। Excuse me, ma'am. जी बेटा। Ma'am, actually Anya messaged me that you should मतलब मैम उसे मीटिंग में ले लीजिए करके। बेटा बट मेरे को तो मीटिंग में कोई नहीं दिखा रहा है। It is not showing anybody in the meeting. हाँ, now she is there. Okay, I have taken her. Okay. चलिए। इसको हम enlarge कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, can you read? Anya, have you entered? Anya, आप आ गए हो बेटा मीटिंग में? चलिए, can we have अग्रिम रीडिंग? Yes, ma'am. हाँ जी, पढ़ो। Manufacturing industry. यहीं से Occasion पढ़ो। of Diwali, Harish Ma'am, should I read this? हाँ, read this, read this. Okay, ma'am. Harish went to a market with his parents. They purchased shoes and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar, tea, and diyas. That the shop in the market were flooded with items for sale. He wondered how so many items could be made in such large quantities. His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individual artisans in household industries. Carry on. Do you have some ideas about these industries? Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore, and aluminium from bauxite? Do you also know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. The workers employed in the steel factories, car breweries, textile industries are employed in providing services. In this chapter, we industries
which fall in the secondary sector. ठीक है. The economic strength of a country is measured by Okay, the wait, development of. wait. Anything in these two paragraphs that I need to explain class to you all again? No, ma'am. No, Okay. ma'am. Quickly your attendance first, and then we'll continue with the reading part. Okay, Anya Gupta, Abhinav Pandey, not in the meeting. Okay, then Agrim, Akansha. Ma'am, I am present. I know. Akansha Yadav, not present. Aksada Mahendru, Present, ma'am. Anamata, Present, ma'am. Anand, not in the class. Ayush, Bhumika Patel, Chirag Gangwar, Deepshikha, Devansh Singh Patel. Present, ma'am. Okay, Dhruv Sharma. Ma'am, my marks, my marks. Devansh, yes. Ma'am, beta. present. Dhananjay is present. Dhruv is present. present. Okay, Dhruv is present. Harshit Kumar Singh, absent. Kapil Patel. Kapil Patel is not there. Kunal, sorry, Kavya Agarwal. Present, ma'am. Present, ma'am. Khushbu, not there. Kunal is present. Mehak Yadav, not present. Malay, Faiz. Present, ma'am. Okay, Faiz. Haseen. Present, ma'am. Okay. Then Shoaib, not there. Nikhil Nehra. Present, ma'am. Priyanshu. Present, ma'am. Ramsha. Present, ma'am. Sania, yesterday you were there in the class. Yes, ma'am. Shreya Gangwar. Vishesh Agarwal. Present, ma'am. Then Vivan Patel. Present, ma'am. Swali Jha is there. Vivan Patel is there. Yes, ma'am. Okay. Do we have Yadbendra in the class? Beta, do we have Yadbendra in the class? Hanji beta. No, ma'am. Hanji beta, bolo bete. मैं नेक्स्ट क्लास करने की बात करूं आपसे. हाँ जी बेटा बोलो बच्चे, आवाज नहीं समझ में आ रही हमें आपकी. Who is it? Ma'am, have you marked me present? Faiz. Ma'am, Faiz. नहीं बेटा आपके नाम ही नहीं लिया हमने. मोहम्मद फैज इज प्रेजेंट. ओके फाइन. शैली तिवारी इज देयर. Is Shelly? Yes, ma'am. Shelly, how are you feeling now, beta? All fine? Ma'am. Yes, ma'am. Better, no? Yes, ma'am. Okay, very good. Take care of your health. Ma'am, yesterday विवान बोल रहे हैं कुछ? Ma'am, yesterday आपने मुझे present मार्क करा था. नहीं, yesterday हमने अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लिया था. आप थे क्लास में क्या? Yes, ma'am. ठीक है, चेक कर लेंगे वो तो हम स्क्रीनशॉट से. अभी हमने कल का लगाया नहीं है, आज का लगा दिया है. ठीक है. Excuse me, ma'am. यस बेटा सानिया. Okay. Ma'am, have you marked my present? हाँ आपने बोला ना, हमने आपसे पूछा तो था कल आप थे नहीं थे क्लास में. Okay, ma'am. ठीक है. ये बताओ. यस बेटा. कुणाल. मैम मेरे का वो मेडिकल था ना. हाँ जी. मैम वो आपको सेंड करना है प्रिंसिपल सर को? बेटा प्रिंसिपल सर को फिजिकली दे के आना है, पेपर्स दे के आने हैं. और अग्रिम आपको भी दे के आना है. जिस दौरान आप ड्यूरेशन में आपका जो था जिसमें आप तबीयत आपकी खराब थी, यू नीड टू गिव द मेडिकल टू प्रिंसिपल इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, राइट? ओके मैम. दे दीजिएगा बेटा. सर ने 2 बार रिमाइंडर भी भेज दिया है मुझे. Ma'am. हाँ जी. यस बेटा. I was present yesterday. तो नाम बताओ बच्चे, हमें ऐसे नहीं पता चल रहा है.
Deepshikha? हाँ, Deepshikha was present yesterday. I know. हाँ, चलिए बेटा. मैम हाँ जी अग्रिम. मैम प्रिंसिपल सर will be available on Sundays. Beta, he is always there in the office.